Next topic, Indian polity and constitution. Let's see, students. Grant of remission, a classic case of using Supreme Court to violate law verdict. आइए देखते हैं इस मुद्दे को. बिल्किस बानो केस 2002 से चलता हुआ 2023 आ चुका. 21 साल हो चुके हैं, 22 साल इनफैक्ट, 22nd ईयर चल रहा है. एंड द केस हैज सीन इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स. आइए देखते हैं बिल्किस बानो केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट का ये नया वर्डिक्ट जो कल आया कैसे एक लैंडमार्क वर्डिक्ट है. स्टैटिक एरिया से कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व है? रेमिशन, pardon powers of governor, yes, and apart from this convicts who have been convicted in case of heinous crimes like rape and murder. आइए देखा जाए इस पूरे मुद्दे को स्टूडेंट्स. इस मुद्दे को देखने के लिए मैं 2 साल पहले का न्यूज़पेपर मैंने उठाया, मैंने 8 साल पहले का भी न्यूज़पेपर उठाया और तब देखा कि क्या डिस्कशन में चल रहा था. लेट्स सी. मार्च 3, 2002. आइए अभी देखा जाए पहले हुआ क्या था, फिर हम लोग इसके एनालिसिस पर आएंगे. मार्च 3, 2002. Violent mob descended upon the family of 21-year-old Bilkis Bano in Randhikpur village near Ahmedabad. The woman was gang raped while 7 members of her family were murdered. Supreme Court, December 2003, direct CBI inquiry into Bilkis Bano's case. हुआ क्या था मैं बता दूं आपको. ये आज से 2 साल पहले के द हिंदू में लिखा हुआ डिटेल्स में. ये देखिए क्या हुआ था, देख लीजिए यहां पर ये पूरा डिटेल्स. यस, यहां लिखा हुआ है. Who is Bilkis Bano? Bilkis Bano was 21 years old and 5 months pregnant when she was brutally gang raped during her attempt to flee along with her relatives in the violence that broke out during post-Godhra communal riots in Gujarat. गोधरा राइट्स के समय की बात है और उसके बाद भागते हुए पूरे परिवार को रोका गया. And Bilkis Bano was gang raped. Other family members, the girls were gang raped, and the individuals were left considered dead. Bilkis Bano survived. The mob that attacked the group killed her 3-year-old daughter, Saleha, and 14 other members of her family, maintains Bilkis Bano. And violence had broken out in Gujarat in the aftermath of Sabarmati Express train burning incident at Godhra on February 27, 2002. And it was a communally charged atmosphere. 59 people were charged to death after a mob torched one of the coaches returning from Ayodhya to Ahmedabad with a large number of car sevaks of Vishwa Hindu Parishad. And uske baad the family was moving in a truck. इनकी जो कहानी है बिल्किस बानो ने पुटअप किया जो सामने कोर्ट के और जो किताबों में आई आगे चलकर. The family was moving in a truck to a village, but before they could reach, a mob of 30 people attacked them. The men snatched the 3-year-old from Bilkis, smashed her head to the ground. The daughter dead. 3 men, all from her village, and people she knew, took turns to rape a pregnant Bilkis. In the mayhem, 14 members of her family were raped, molested, hacked to death by the mob. Taking her for dead, the assailants left her naked. She survived. She survived. And she survived to retell the tale of horror afterwards. Bilkis regained consciousness hours later, and that was the beginning of a long struggle for justice and dignity. Yes, note these words, justice and dignity. State machinery उस समय, according to Bilkis Bano, worked against her as she tried to get the local police to file her complaint. Even after the FIR was filed, it omitted crucial details. उस समय की बात इनके हिसाब से सब कुछ बिल्किस बानो के स्टेटमेंट्स जो आए हैं सामने उसके हिसाब से देखा जाए. Bilkis Bano then approached National Human Rights Commission and moved the Supreme Court. दिसंबर 2003 में CBI प्रोब ऑर्डर हुआ इस सिनारियो में. अगस्त 2004 में ट्रायल मूव किया गया मुंबई. पहले गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा था, फिर मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया. क्यों? क्योंकि कहा गया कि फैमिली को बार बार थ्रेट्स आ रहे हैं. 4 साल बाद, 4 साल लगे. The trial court found 13 of the 20 accused guilty. 11 were awarded life sentence for their heinous crime. 7 others acquitted for want of evidence. 7 के खिलाफ में एविडेंस नहीं मिला, लेकिन 13 लोगों को
पनिश करने के लिए इस हीनियस क्राइम में इनको पेनाल्टी, दे वर कन्विक्टेड एंड गिवन द पेनाल्टी। और क्या अवॉर्ड किया गया सेंटेंस? लाइफ सेंटेंस। ये देखिए, आजीवन कारावास। A 3-year sentence of imprisonment was awarded to the cop, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ में, who initially refused to file बिल्किस बानो's complaint। मई 2017, अब जो कन्विक्टेड थे वो लोग बार बार अपील कर रहे थे। मई 2017, the Bombay High Court upheld the conviction and life imprisonment of all 11 and quashed the acquittal of 7 others। जो बाकी 7 थे उनका भी एक्विटल हटाया गया, उनको भी लाया गया कि फिर से सुनवाई होगी, फिर से देखा जाएगा। बिल्किस बानो से पूछा गया 2017 में, फॉर व्हाट आर यू फॉलोइंग दिस होल केस? इज इट फॉर द मैटर ऑफ रिवेंज? शी सेड अ वेरी वेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आई वॉन्ट जस्टिस नॉट रिवेंज। अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज कम्स अप, आई वॉन्ट जस्टिस नॉट रिवेंज। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑर्डर किया गुजरात गवर्नमेंट को कि बिल्किस बानो को 50 लाख का कंपनसेशन पे किया जाए और जॉब और अकोमोडेशन दिया जाए। आइए वापस चलते हैं अब उस टाइमलाइन की तरफ। बात समझ में आ रही है? टेल मी स्टूडेंट्स, आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं। अब वापस आया जाए, अब समझ में आ गया चीजें क्या चल रही थी। 2002 में मार्च 3 गैंग रेप ऑफ बिल्किस बानो। दिसंबर 2003 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सीबीआई इंक्वायरी। Jan 21st, 2008, a special court, trial court, convicts 11 men and sentences them to life imprisonment for raping Bilkis Bano and murdering 7 of her family members. Next, आगे का टाइमलाइन। दिसंबर 2016, Bombay High Court reserves judgment on appeals filed by 11 prisoners who had been sentenced to life imprisonment. अपील कर रहे थे वो लोग। मई 17, Bombay High Court upholds the life sentences of the 11 convicts. आजीवन कारावास मिलना चाहिए, हाई कोर्ट ने कह दिया। अप्रैल 23, 2019, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गुजरात गवर्नमेंट टू पे कंपनसेशन ऑफ ₹50 लाख टू बिल्किस बानो। आगे का टाइमलाइन। मई 13, 2022, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स गुजरात गवर्नमेंट टू कंसीडर द प्ली ऑफ अ कन्विक्ट फॉर प्रीमैच्योर रिलीज इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ जुलाई 9, 1992। हम देखेंगे इस पॉलिसी को क्या है, रेमिशन पॉलिसी क्या है। अगस्त 15, 2022, एज पार्ट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट रेमिशन पॉलिसी, 11 कन्विक्ट्स जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया था, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम गोधरा सब जेल। अगस्त 25, 2022, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू द सेंटर एंड गुजरात गवर्नमेंट। ये देखिए इनके रिलीज के बाद, ऑन अ PIL jointly filed by some of the famous journalists अगेंस्ट द प्रीमैच्योर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स। आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या कन्विक्ट्स को रिलीज करना चाहिए था या नहीं? मुझे बता दीजिए। बताइए मुझे, रिलीज करना चाहिए था? रिलीज क्यों किया गया मैं बताऊंगा अभी यहां पर। आइए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 30, 2022, बिल्किस बानो मूव सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द गुजरात गवर्नमेंट डिसीजन टू ग्रांट रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है? द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट चेंज, द टर्म इज चेंज्ड। यस, हम पढ़ेंगे आज इसको। रेमिशन, ये वर्ड पॉलिटी में आया हुआ है पार्डनिंग पावर्स में गवर्नर के। एंड बिल्किस बानो सेज द रिलीज ऑफ द रेमिशन ऑफ 11 कन्विक्ट्स हैज शेकन द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। दिसंबर 17, 2022, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस बिल्किस बानो's प्ली सीकिंग अ रिव्यू ऑफ May 13 वर्डिक्ट। May 13 वर्डिक्ट वही था जिसमें इनको रिलीज करने का दिया गया था परमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं कंसिडर करेंगे। गुजरात सरकार एप्रोप्रिएट है, वो देखेगी, रेमिशन गवर्नर को देखना है। मार्च 27, 2023, सुप्रीम कोर्ट में वापस पिटीशन फाइल हुआ टू सेंटर एंड गुजरात गवर्नमेंट एंड अदर्स ऑन द प्ली फाइल्ड बाय बिल्किस बानो। अगस्त 7, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट्स हियरिंग ऑन पिटीशंस चैलेंजिंग गुजरात गवर्नमेंट्स रेमिशन। जनवरी 8, 2024, सुप्रीम कोर्ट क्वैशेस द रेमिशन सेंटेंस। कहा गया कि इन कन्विक्ट्स को अंदर जेल में ही रहना पड़ेगा। मुद्दा क्या है? इनका रेमिशन। आइए इस टॉपिक को देखा जाए स्टूडेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिंदूज आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन अगस्त 24, 2022। ये देखिए क्या था ये रेमिशन क्या होता है। आइए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक की तरफ। यही मैंने आर्टिकल उठाया है बैकग्राउंड से और देखा जाए
क्या है इस टॉपिक में डिटेल, जो आपको यूपीएससी के स्टैटिक और करंट अफेयर्स के पोर्शन में सवाल निकल सकते हैं। ये देखिए, what is the controversy over remission in the Bilkis Bano case? Remission and the laws governing it. Remission is shortening of a sentence without changing its character. It is not a right, but based on executive discretion. Very important statement comes up. Executive discretion के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स। और मैं अभी दिखाऊंगा, एक सवाल आया हुआ है 2023 के प्रीलिम्स में इसी टॉपिक से हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह केस में, वेरी इंपॉर्टेंट केस, महेंद्र सिंह केस में उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने दैट ये एक राइट नहीं है, ये एक डिस्क्रिशन है एग्जीक्यूटिव का। ये गुजरात की सरकार देखेगी या उस स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, जहां कहीं जो इन्वॉल्व है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। सेकंड पॉइंट, द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 डिफाइंस रेमिशन एज द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स regulating the award of marks to and the consequent shortening of sentences of prisoners in jail। अब देखा होगा कितनी बार रेमिशन के ऊपर बॉलीवुड मूवीज भी बनाई गई हैं इस टॉपिक पर। मींस आई एम नॉट रिलेटिंग इट आउट हियर। रेमिशन का मतलब होता है अच्छा काम किए हैं अंदर जेल में रहकर तो रिलीज कर दिया था, प्री मैच्योर रिलीज। रेमिशन के लिए बार बार डिफरेंट केसेस आए हैं सामने लास्ट 4-5 ईयर्स में। इवन रेमिशन को लेकर राजीव गांधी असोसिनेशन कन्विक्ट्स का भी आया था, रेमिशन को लेकर रिक्वेस्ट, याद कीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा। प्रिजन एक्ट, क्या यूपीएससी ने सवाल पूछा इसके ऊपर, पहले देख लीजिए स्टूडेंट्स। और एक चीज देखिए यहां पर आर्टिकल 72 ग्रांट्स, देखिए रेमिशन एज पर लॉ, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रेमिशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर एक्ट्स एंड एज पर जेल मैनुअल्स। तीनों जगह पर रेमिशन तीनों जगह मेंशन्ड है। सवाल इस बार एक्सपेक्टेड यूपीएससी प्रीलिम्स, व्हाइल आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट रेमिशन, आर्टिकल 161 वेस्ट सिमिलर पावर विद द गवर्नर। ये देखिए, मीनवाइल सीआरपीसी जो अभी हटाकर नया मींस भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह पर लाया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया, ये इसी में सेक्शन 432 एंड 433 डील विद रेमिशन एंड सस्पेंडिंग ऑफ सेंटेंसेस। सो रेमिशन कैन बी स्टैट्यूटरी आल्सो। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर एक्ट प्रिजन इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए लिखा हुआ है डायरेक्टली इस आर्टिकल में। एंड द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेल्स फॉल अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2 मिनट्स। रेमिशन के नॉर्म्स भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। और आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए सेट ए क्वेश्चन नंबर 32, समझ में आ रहा है सवाल कहां से आ रहे हैं? क्यों जरूरी है करंट अफेयर्स अच्छे से अच्छे गाइडेंस में पढ़ना? ये देखिए समझ में आ रहा है। सेट ए क्वेश्चन नंबर 32 2023 प्रीलिम्स का पेपर देखिए, किताब में दिया हुआ है नहीं, ये बस सवाल देखिए और फिर वो स्टेटमेंट देखिए। Statement 1, in India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. Statement 2, in India, prisons are governed by Prisons Act 1894, just a minute, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. ये देखिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। बिल्किस बानो केस एक्सप्लेन्ड अगस्त 24 2022, अगस्त 24 2022 बिल्किस बानो केस, उसमें साफ साफ दिया हुआ द हिंदू में। देखिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट नोट कीजिए और सेकंड स्टेटमेंट नोट कीजिए और वापस चलिए उस टॉपिक की तरफ। आइए देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना। अब देखिए
Prison is a subject under the state list of the 7th schedule of the Constitution, and the management and administration of jails fall under state governments. 7th schedule एक्ट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, देख लीजिए। क्लियर हुआ ये टॉपिक? मुझे बताइए। प्रिजन एक्ट में केवल रेमिशन के बारे में दिया हुआ। आर यू गेटिंग इट? UPSC now wants a clear-cut administrator who delves into details while reading a topic. Superficial reading is not allowed in UPSC now. You can see it here. Clear? देख लीजिए, साफ साफ यहां देखिए, साफ साफ प्रिजन इज सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। दैट्स इट। क्लियर हुआ? संविधान के अंदर क्या दिया हुआ है। अब देखिए रेमिशन के बारे में सीआरपीसी में क्या दिया हुआ, देखिए यहां पर सेक्शन 432, सेक्शन 435, यानी रेमिशन कर सकते हैं। रेमिशन मींस द प्रिजन सेंटेंस कैन बी शॉर्टेड। ये देखिए सेक्शन 432 एम्पावर्स द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू सस्पेंड और रेमिट द सेंटेंस ऑफ अ प्रिजनर। डिटेल्स लिखे हुए हैं। यूपीएससी का सवाल फोकस में, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The concept of remission or suspension is only given in the Constitution. Wrong. It's given in the Act also, CRPC. It was also given in 1894 Prisons Act. Yes. Section 435. Now this is a point to note. ये देखिए, ये point important है students, और जहां मैं important star mark कर रहा हूं उसे पढ़ लीजिए। Section 435 states that in certain cases the states have to act with the central government consultation. स्पेसिफिकली अगर सीबीआई के केसेस हैं तो ये देखिए, दिस इंक्लूड केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और बाय एनी एजेंसी दैट हैज इन्वेस्टिगेटेड एन ऑफेंस अंडर अ सेंट्रल एक्ट अदर देन द सीआरपीसी। नोट इट डाउन। सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, सीबीआई इंक्वायरी गया था, और हीनियस क्राइम्स के सिनारियो में सेंटर से पूछना पड़ेगा, लिखा हुआ है साफ साफ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट के पास रेमिशन के लिए आया स्टेटमेंट, ये देखिए, एंड गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन कर दिया उनका। रेमिशन करते समय उसने कहा कि मैंने 1992 में एक पॉलिसी आई थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, उसी के ऊपर मैंने ये रेमिशन किया है। पूछा गया कौन सा ऑर्डर था भाई, ये देखिए कौन सा ऑर्डर था। द स्टेट गवर्नमेंट सेड इट रिलाइड ऑन द 1992 पॉलिसी which doesn't explicitly define the nature of the crime to be considered while deciding on the remission plea. ये देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था। 2022 में 1992 की पॉलिसी का इस्तेमाल करके और रेमिशन किया गया। 1992 की पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है बस नोट कर लीजिए, यहां लिखा हुआ साफ साफ। स्टूडेंट्स हैव अ लुक, 2 मिनट्स। क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। 1992 पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। जस्ट अ मिनट, मैं दिखा रहा हूं आपको क्या लिखा हुआ है, क्यों रेमिशन किया गया, ये रीजंस दिया गया। 1992 पॉलिसी को लेकर। 1992 पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। 1992 की पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाई वर द रेप मर्डर कन्विक्ट्स रिलीज्ड? इट पर्टेन टू द अर्ली रिलीज ऑफ द लाइफ कन्विक्ट्स। जो लोग आजीवन कारावास पर हैं उनका अर्ली रिलीज हो सकता है 18 दिसंबर 1978 के बाद से। हु हैव सर्व्ड 14 क्लियर ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। 14 साल सर्व कर लिया है, प्रिजन सेंटेंस, आजीवन कारावास में थे, रिलीज कर दीजिए, रेमिशन। 1992 पॉलिसी। Is it clear? Tell me. गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से आया डिसीजन कि 1992 की पॉलिसी के हिसाब से क्या था, 1978 18 दिसंबर के बाद कोई भी कन्विक्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का आया था वर्डिक्ट 18 दिसंबर 1978 को, कि कोई भी कन्विक्ट अगर 14 साल का सेंटेंस सर्व कर ले रहा है तो उसके बाद उसको प्री मैच्योर रिलीज के लिए कंसिडर किया जा सकता है। रेमिशन इसी को कहते हैं। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? देखिए 2022 पॉलिसी यूज 1992, द वर्डिक्ट केम अप इन 1978 फॉर दिस पॉलिसी। द फैक्ट इज दैट व्हाई वाज इट क्वेश्चन्ड?
क्योंकि 2014 में भी एक पॉलिसी आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, थोड़ा उस पॉलिसी को देख लीजिए, इसीलिए यह मुद्दा गया। देखिए, द कोर्ट्स, द जुडिशरी एक्ट्स ऑन एविडेंस एंड लॉज, इट डजंट एक्ट ऑन सम इंट्यूशंस, उसे एविडेंसेस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया कि 1992 पॉलिसी पर क्यों एक्शन लिया गया, जब 2014 में नया पॉलिसी आया था इसको लेकर। 2014 की पॉलिसी को अनदेखी क्यों किया गया, और इसीलिए कल क्वैश किया गया है वर्डिक्ट रिलीज को लेकर। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ था 2014 की पॉलिसी में। इन 2014 द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रॉट आउट अ न्यू पॉलिसी। ये देखिए, brought out a new policy. What was this policy? Let's see. In 2014, the Ministry of Home Affairs brought out a new policy. The guidelines specified that special remission was not to be granted to 12 categories of convicts, including prisoners convicted for the offense of rape. Heinous crimes के सिनारियो में आप रेमिशन नहीं कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पॉलिसी 2014, रेप और मर्डर उन सिनारियों में, ये 12 देखिए 12 कैटेगरीज, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो व्हाई वाज इट नॉट कंसिडर्ड, एंड दिस इज द मेन इश्यू आउट हियर। डू यू एग्री स्टूडेंट्स दैट 1992 पॉलिसी वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिलीजिंग द प्रिजनर्स? उसमें क्या लिखा? 14 साल सर्व कर लीजिए, निकल लीजिए बाहर। 2014 में ये क्यों आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रूल? बताइए मुझे, कुछ याद है निर्भया कांड के बारे में इतना ज्यादा? उसके बाद जो दिस कॉमन मैन केम अपॉन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग, यस, दैट व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, वेयर इज द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन गोइंग ऑन? एंड बिकॉज ऑफ दिस द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ब्रॉट आउट अ न्यू पॉलिसी दैट मर्डर और रेप के केसेस में नहीं रिलीज होगा प्री मैच्योर कोई भी। आप क्या एग्री करते हैं? 1992 सही है या 2014 सही है, मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स। तो अब बताइए आपको क्या होना चाहिए इन कन्विक्ट्स के साथ में, मुझे बताइए आप पॉलिसी के हिसाब से। इसीलिए ये जो 2 जज बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों ने डिसाइड किया, एंड इन्होंने क्या डिसाइड किया? दैट क्वैश कर दिया गया रेमिशन। कहा गया नहीं, रिलीज नहीं होंगे। क्यों रिलीज हो जाएंगे भाई? ये देखिए, क्यों रिलीज किया जाएगा? जब आपने क्राइम किया है और अगर नियम कानून के खिलाफ जा रहा है सब कुछ, तो आपको रिलीज नहीं किया जाएगा प्री मैच्योर। ये देखिए कौन बेंच में कौन कौन था? जस्टिस BV नागरत्ना, शी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमेन CJI सीनियरिटी के बेसिस पर आगे चलकर, एंड उज्जवल भुयान। ये देखिए इन लोगों का बेंच था। This is it. So, leaving apart all the communal hatred, riots which occurred in the post-Godhra, जो गोधरा राइट्स जो हुए थे और 2 साल तक परेशानियां रही थी, दोनों कम्युनिटीज़ के जो सबसे ज़्यादा जो दिस हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व लोग थे, उनको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उसका बदला किसी महिला से निकालना, बच्चों से निकालना, ये बिल्कुल दरिंदगी है और जानवर की तरह व्यवहार। जानवर भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है। दिस इज अ क्लियर कट अ हीनियस क्राइम कमिटेड। पनिशमेंट शुड नॉट बी रेमिटेड एंड दैट इज इट। यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा, रेमिशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का इसी के ऊपर आया था एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। इसके अलावा आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल में, प्रिजन्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है, 7th शेड्यूल में दिया हुआ है, क्लियर कट दिया हुआ है। प्रिजन्स मैनेज होते हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आपने और 1992 की पॉलिसी पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की खुद की पॉलिसी थी, वर्डिक्ट था 1978 का, उस पर पॉलिसी आई थी, एंड 2014 की निर्भया कांड के बाद आई पॉलिसी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। आपने दोनों कंपैरिजन देखा और फाइनली आपने वर्डिक्ट देखा। फिलहाल मैं तो इतना ही कहूंगा कि रिलीज नहीं होना चाहिए इनको, और इन्हें जेल में ही रखना चाहिए। आजीवन कारावास भी कम ही है इनके लिए। फिलहाल ये स्टैटिक एरिया से पार्डन का मतलब क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशनल पार्डन का जो कंसेप्ट यहां दिया हुआ ये देखिए, आर्टिकल 72 फॉर द गवर्नर, आर्टिकल 161 फॉर द आर्टिकल 72 फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 161 फॉर द गवर्नर। रेमिशन देखिए, लेसनिंग द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, इट कैन कम अप इन यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर, दैट इज इट। तो ये पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। आइए आगे बढ़ा जाए इस मुद्दे से आगे और